One time, एक बार Kenneth Hagin uncle, केनेथ हेगन अंकल he had gone a far place to preach the gospel. वो एक बहुत दूर किसी जगह गए थे सुसमाचार सुनाने के लिए. And that time there were no phones, so his wife sent him a telegram that we have no food, we have no money, and the kids are super sick. और उस समय टेलीफोन्स नहीं होते थे तो उनकी पत्नी ने उनको टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा हमारे पास खाना नहीं है, बच्चे बीमार हैं, भूखे हैं. And they are just throwing up. I don't know what to do. We have no money. और बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ उनका. And he went to the church. He took that letter. He went to the church. That letter telling. I think it was a letter. Yeah, letter he took and he went to the church. और उन्होंने उस पत्र को लिया, पत्र या टेलीग्राम जो भी था उसको लिया और वो चर्च गए. And he went there और वहाँ जाकर and he began to read that letter before God. वो परमेश्वर के सामने वो चिट्ठी पढ़ने लगे. He said, God, बोला प्रभु I am here serving you. मैं यहाँ आपकी सेवा कर रहा हूँ. There is no food in my house. मेरे घर में कोई खाना नहीं है. My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं. And he said, I'm gonna pray through this thing. और उन्होंने कहा मैं इसके बीच में मैं प्रार्थना करूँगा इस सब के बीच में. You know, like I'm gonna pray through until I get a breakthrough. I'm gonna pray through. उन्होंने कहा जब तक मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, जब तक मैं इस बात से आज़ादी नहीं देखूंगा. Have you heard that? Push, pray till you get breakthrough, something like that. कभी Yeah, किसी ने सुना है कि प्रार्थना करते रहो जब तक छुटकारा ना देखो. So he prayed for 3-4 hours. तो 3-4 घंटे उन्होंने प्रार्थना की. Then he went back. फिर वो वापस गए. He went back to the pastor's house, which was near the church. जहाँ गए हुए थे उस पास्टर के घर वापस चले गए. And again he got this thought, I'm not gonna quit so easily. और दोबारा उनको ये विचार आया कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा. So he went back. तो वो वापस चर्च आ गए. Again prayed for 2-3 hours. 2-3 घंटे दोबारा प्रार्थना. All the energy that he had. जितनी उनमें ऊर्जा थी. Read the letter again to God. पत्र को दोबारा Said, पढ़ा. God, my kids are sick. प्रभु मेरे बच्चे बीमार हैं. I have no food in my house. मेरे घर में खाना नहीं है. And then when he was tired और जब वो by थक गए, speaking so much, इतना बोल के वो थक गए, he just sat silent in silence. वो चुप करके वहाँ बैठ गए. And he heard God's voice. और तब उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी. And God said, what are you trying to do? और परमेश्वर ने सवाल किया कि तू क्या करना चाह रहा है. He said, God. उसने बोला प्रभु. He read the letter. उसने दोबारा चिट्ठी पढ़ दी. My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं. My wife doesn't have any money. मेरी पत्नी के पास पैसे नहीं है. Why don't you understand? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? And he heard the voice again. और उन्होंने दोबारा से प्रभु की आवाज़ को सुना. What are you trying to do? और प्रभु ने पूछा तू क्या करना चाह रहा है. He said, God. उसने बोला प्रभु. My kids are sick. मेरे बच्चे बीमार हैं. I have no money. मेरे पास पैसे नहीं है. Why don't you understand? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? And God said, और प्रभु ने कहा why don't you believe my word? तू मेरे वचन को क्यों नहीं मानता? He said, उसने कहा if there is any person in America who believes in the word more than it's me. I mean, like I am the person who believes in your word more than anyone else. और केनेथ हेगन ने कहा कि अमेरिका में मेरे से ज़्यादा कोई ऐसा बंदा नहीं जो तेरे वचन को सच मानता हो. God said, then why are you acting like this? तो प्रभु ने कहा फिर तू ऐसे ढोंग क्यों कर रहा है? If you really believe अगर तू सच में मेरे वचन that को my मानता word है is true, कि मेरा वचन सच है, so does not my word say that by my stripes you are healed? क्या मेरा वचन ये नहीं कहता कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया है? Why are you striving so that your striving will make me do something for you which I have already done for you? क्यों तू इतनी मेहनत कर रहा है ये दिखाने के लिए कि तेरी मेहनत करने के कारण मैं तेरे लिए कुछ करूं जो मैंने तेरे लिए पहले से कर दिया है? He said, does not my word say that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus? और प्रभु ने सवाल किया क्या मेरा वचन ये नहीं कहता कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा उस महिमा के धन के मुताबिक जो यीशु मसीह में मेरे लिए है? Quickly he said, God, I'm sorry. और जल्दी उन्होंने जवाब दिया कि प्रभु मुझे माफ़ करना. I was walking in unbelief and I didn't know it. मैं अविश्वास में जी रहा था और मुझे पता भी नहीं था. He lifted up his hands उन्होंने अपने हाथों को and उठाया he started thanking the Lord. और प्रभु को He said, धन्यवाद. thank you, Father. धन्यवाद प्रभु. You bore my children's sickness on the cross. धन्यवाद पिता कि आपने मेरे बच्चों की बीमारियों को क्रूस पर उठा लिया. And by your stripes. और आपके कोड़े They are खाने से healed. मेरे बच्चे चंगे हैं. And he said he walked out of that place whistling. और उन्होंने लिखा आगे कि वो सीटियां बजाते हुए चर्च से बाहर निकल गए. Because if you really believe as if the word is true, you're going to act like it. क्योंकि अगर आप सच में मानते हो कि वचन सच्चा है तो आप उसके मुताबिक काम भी करोगे. Amen? And he said, I didn't even bother to check. और उन्होंने कहा मैंने अपनी पत्नी से पूछने की भी जहमत नहीं उठाई. Because I knew that God
cannot lie. क्योंकि मैं जानता था कि प्रभु झूठ नहीं बोल सकता। Next day morning, he gets another message from his wife. अगली सुबह एक और पत्र उनको आता है And she said, और उनकी पत्नी ने कहा, last afternoon, कल दोपहर को I don't know what happened, मुझे नहीं पता क्या हुआ, but in a snap, both the kids got perfectly all right. लेकिन पलक झपकते ही दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हो गए। We have to understand that God's power is here right now in this room. This place is filled with God's power. हमें ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। इस समय ये कमरा भरा हुआ है परमेश्वर की सामर्थ्य। Amen? But faith is that conductor through which the power of God will flow into your lives. लेकिन बिजली जैसे बहती है एक तार से, वैसे ही विश्वास वो तार है जिसके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में बह सकता है। There are some good conductors, there are some bad conductors. Like wood is a bad conductor. So if you touch in electricity with the wood, the electricity won't touch you. और कुछ चीज़ें हैं जो बिजली को अच्छे से बहने देती हैं अपने द्वारा, कुछ नहीं। जैसे लकड़ी से आप अगर बिजली को छुएंगे तो कुछ नहीं होगा। Guys, are you getting what I'm saying? Unbelief is a bad conductor. अविश्वास वो चीज है जिसके द्वारा बिजली नहीं बह सकती। And परमेश्वर की सामर्थ्य unbelief is so subtle, you will not even know that you are in unbelief. और अविश्वास इतने धीमे से, इतने हल्के से आता है कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप अविश्वास में जी रहे हो। Bishop David Oyedepo, बिशप डेविड ओडोपो, he is one of the largest church in Nigeria. वो नाइजीरिया के सबसे बड़ी कलीसिया में से हैं। He has told his staff, उन्होंने अपने लिए काम करने वालों को बोला है, never come and tell me that we don't have money. कभी मेरे पास आकर ये मत बोलना कि हमारे पास पैसे नहीं है। He said, if anybody of you will come to me with a bad news, that will be the last day you'll work for me. उन्होंने कहा अगर तुम में से कोई भी मेरे पास बुरी खबर लेकर आएगा तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा मेरे दफ्तर He में। said, because I don't live in the natural. उन्होंने कहा क्योंकि मैं शारीरिक दशा के मुताबिक नहीं These जीता। people are not faking it. ये लोग नाटक नहीं कर रहे हैं। These people have believed. For them, there is a higher reality to what you see right now. इन लोगों ने उस बात को मान लिया है जो सच्चाई इस शारीरिक सच्चाई से ऊपर है, उनको उन्होंने सच मान लिया है।